Hello dear students and welcome to Crop Course. In Agriculture Extension, we are seeing the course Fundamentals of Rural Sociology and Educational Psychology. That is your Extension 111 course. And today we will start with our lecture number 4. So here at Crop Course, we help you to prepare for your various competitive examinations and also your PG entrance examinations. So if you haven't yet subscribed to our channel, then do subscribe and also join us on Telegram channel. My name is Sharayu Deshmukh and I will help you to prepare for your extension education course. So हमने अभी तक 3 लेक्चर्स देखे हैं ओके और इसमें जो लास्ट लेक्चर हमने देखा था दैट इज योर सोशल ग्रुप्स. इसमें हमने मीनिंग देखे हैं, डेफिनेशन देखा है सोशल ग्रुप्स का. वी हैव आल्सो सीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप, देन क्लासिफिकेशन किया है हमने. Then we have seen the factors considered in formation and organization of groups. We have also seen motivation in group formation. And lastly, we have seen role of social groups in agricultural extension. So आज का जो हमारा चैप्टर है that is social stratification. Okay. So in social stratification, today we will be seeing that what is the meaning and definition of social stratification, then what are the functions of social stratification, then basis of social stratification, forms or types of social stratification, and lastly we will see what is the difference between caste and class. So first one is the meaning of stratification. तो stratification मतलब क्या होता है that it is the structural inequalities between different groupings of people. हमने last lecture में पढ़ा था that there are various types of groups. ओके सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं. सो इन ग्रुप्स में भी कुछ स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज होती है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं अमंग्स दी पीपल इन दिस ग्रुप्स. तो इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट it is compared to the geological layering of rock in the earth surface. अभी ये जो rocks की जो layers है ना, ये हमने already geography में पढ़ा है. So there are various layers of rock. तो igneous rocks है, extrusive, igneous rock, intrusive, फिर sedimentary rocks होते हैं, then metamorphic rock होते हैं. Okay, so क्या होता है ना कि ये जो rocks की जो properties है, इनमें कुछ differences होते हैं. सो वैसे ही जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी सोसाइटी में जो ग्रुप्स है, उनमें भी कुछ इनइक्वालिटीज होती है, कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं. तो इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं. So stratification is the structural inequalities between different groupings of people. Now next is the definition. The process of defining and ranking such categories is called as stratification. तो क्या होता है that अलग अलग कैटेगरीज होते हैं. ओके ना सपोज अभी ये ना हम आपका स्ट्रेटा 1, स्ट्रेटा 2 एंड स्ट्रेटा 3 है. ये स्ट्रेटा 1, दिस इज योर स्ट्रेटा 2 एंड दिस इज योर स्ट्रेटा 3. तो इनमें क्या होते हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं. स्ट्रेटा 1 इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेटा 2 एंड स्ट्रेटा 3. हर एक स्ट्रेटा एक दूसरे से अलग अलग होता है. सो यू डिफाइन एवरी स्ट्रेटा एंड यू रैंक दी स्ट्रेटास अकॉर्डिंगली. So this is called as stratification. अभी हमने last lecture में about horizontal strata and vertical strata भी पढ़ा है. If you haven't seen that previous video, then do check it out. Okay, but I will revise it once again for you. Horizontal में क्या होता है ना, okay, ये आपका हुआ horizontal strata. और ये जो है this is your vertical strata. जो भी लोग एक स्ट्रैटा में, सपोज स्ट्रैटा 3 में जो भी लोग प्रेजेंट है, तो उनमें बहुत सारे सिमिलैरिटीज होती है. मतलब या तो उनका एनुअल इनकम सेम लेवल का होगा, नहीं तो वो सेम काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन करते हैं, उनका प्रोफेशन ऑलमोस्ट सेम टाइप का होगा. तो इसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटा. मतलब डिफरेंसेस उनमें नहीं होते हैं, देयर आर मेनी, देयर इज होमोजेनिटी ओके उसमें. और जब हम वर्टिकल की बात करते हैं ना, तो क्या होता है कि बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम इनकम की बात कर ले तो जो स्ट्रैटा 1 में है उनका इनकम स्ट्रैटा 2 के लोगों से अलग होगा, स्ट्रैटा 3 के लोगों से अलग होगा. सो दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल स्ट्रैटा. सो अभी ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है, तो इसे जैसे जियोलॉजिकल लेयरिंग ऑफ रॉक से कंपेयर किया गया है, तो वैसे ही हम लेयर्स ऑफ सॉइल के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं. अभी लेयर्स ऑफ सॉइल हमें मालूम है, ओ
देन ए होराइजन, ई होराइजन, बी है, सी है, आर होराइजन। सो एवरी होराइजन में जो प्रॉपर्टीज है सॉइल की, जो सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है, इसलिए हमने उसे कुछ लेयर्स में डिफ्रेंशिएट किया है। सिमिलरली जब हम एटमॉस्फेयर के लेयर्स देखते हैं, ओके, सो ट्रोपोस्फियर की जो प्रॉपर्टीज है वो स्ट्रेटोस्फियर से अलग होती है, स्ट्रेटोस्फियर की मीजोस्फियर से अलग होती है। सो हर एक लेयर की जो प्रॉपर्टी है ना वो एक दूसरे से अलग अलग होती है, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अभी जो क्रस्ट है उसके प्रॉपर्टीज मेंटल से अलग है, देन कोर के प्रॉपर्टीज क्रस्ट और मेंटल से अलग होते हैं। सो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक लेयरिंग करते हैं। सो इन द सिमिलर वे सोसाइटी को भी हमने कुछ लेयर्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास। कास्ट एंड क्लास के बेसिस पे हमने इसे डिवाइड किया है, हमने सोसाइटी को डिवाइड किया है। इसे हम क्या कहते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। कुछ तो डिफरेंसेस होते हैं जिसलिए हम इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं, वी डिवाइड द इंडिविजुअल्स। हम कुछ स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज की बेसिस पे लोगों को डिवाइड करते हैं, उन ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. So now there are various other definitions also of social stratification. So first one is social stratification is the arrangement of individuals or groups of people into hierarchically arranged strata. अभी ये क्या है, एक hierarchically arranged strata है, ओके, एक के नीचे एक hierarchy है, एक strata है, ओके। सो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स को वैसे अरेंज करते हैं in the community. So this is called as social stratification. So social stratification is the arrangement of individuals or groups of people into hierarchically arranged strata. Next definition given by Kuber is that social stratification has also been defined as pattern of superimposed categories. अच्छा, तो क्या है सुपर इम्पोज, मतलब क्या, एक के नीचे एक, जैसे स्ट्रेटा 1, फिर स्ट्रेटा 2, स्ट्रेटा 3, स्ट्रेटा 4, ऐसे एक के नीचे एक क्या होती है, कैटेगरीज होती है। और देर आर सर्टन डिफरेंशियल प्रिविलेजेस, मतलब जो भी, अभी सपोज मैं फिर से एक बार ड्रॉ करती हूँ, स्ट्रेटा 1, स्ट्रेटा 2 एंड स्ट्रेटा 3, जो भी प्रिविलेजेस स्ट्रेटा 1 को मिलते हैं वो स्ट्रेटा 3 को नहीं मिलते, स्ट्रेटा 2 को नहीं मिलते, ओके। मतलब क्या, स्ट्रेटा 1 के पास जनरली ज्यादा प्रिविलेजेस होते हैं। प्रिविलेजेस मतलब उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है या फिर उनके पास रिसोर्सेस ज्यादा होते हैं, ओके। सो हम इसे क्या कहते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। सो इट इज डिफाइंड एज पैटर्न ऑफ सुपर इम्पोज कैटेगरीज। यहाँ पे ये जो कैटेगरीज है दे आर सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर ऑफ डिफरेंशियल प्रिविलेजेस। उनको जो प्रिविलेजेस मिलते हैं वो भी अलग अलग मिलते हैं। Now next definition is social stratification is the division of population into two or more layers. क्या है, दो या फिर दो से ज्यादा layers. Layers मतलब परतें, परतें means your strata. So दो या फिर दो से ज्यादा layers में population को हम divide करते हैं, which is relatively homogeneous. मतलब क्या, जितने भी लोग strata 3 में है ना वो सब होमोजीनियस हो गए, जो स्ट्रेटा 2 के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ होमोजीनियस हो गए, ओके। बट देयर आर डिफरेंसेस इन द प्रिविलेजेस एंड रेस्ट्रिक्शंस या फिर रिवॉर्ड्स हो गए, तो इनमें कुछ डिफरेंसेस हो गए इन स्ट्रेटा 1, स्ट्रेटा 2, स्ट्रेटा 3। मतलब स्ट्रेटा 1 और स्ट्रेटा 2 और में जो प्रिविलेजेस है वो अलग अलग हो गए, फिर जो रेस्ट्रिक्शंस है बिटवीन दी स्ट्रेटास, बिटवीन स्ट्रेटा 1, 2 एंड 3 वो अलग अलग हो गए। लेकिन जब हम होमोजेनिटी की बात करते हैं ना तो सिर्फ स्ट्रेटा 1 में जितने भी लोग होते हैं वो एक दूसरे से होमोजीनियस है, स्ट्रेटा 2 के लोग एक दूसरे से होमोजीनियस होते हैं। So these three are the definitions. So social stratification is the division of population into two or more layers, each of which is relatively homogeneous. मतलब जो हर एक लेयर है वो होमोजीनियस है, स्ट्रेटा 3 में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे से होमोजीनियस है। एंड बिटवीन मतलब 1 और 2 और 3 के बीच में, ओके, बिटवीन विच देयर आर डिफरेंसेस। डिफरेंसेस कौन कौन सी चीज में, इन प्रिविलेजेस हो या फिर रिसोर्सेस हो, अपॉर्चुनिटीज हो, कुछ रेस्ट्रिक्शंस में डिफरेंसेस हो गए, देन रिवॉर्ड्स एंड ऑब्लिगेशंस।
आई होप दैट यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा दैट व्हाट इज एग्जैक्टली सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. So now let us move on to the next topic, that is functions of social stratification. Social stratification के भी कुछ functions होते हैं, हम अभी ये देखेंगे. So first function is that a means of accomplishing essential jobs in society. कुछ essential jobs होते हैं society में. So social stratification helps in accomplishing these essential jobs. So in society, social stratification contributes as essential means to get some of its jobs done. हमें जब कुछ jobs करके लेने होते हैं, okay, so that is one of the function of social stratification. It is the essential means to get some of the jobs done. फॉर एग्जाम्पल सपोज कारपेंटर का जॉब है, नहीं तो ब्लैक स्मिथ का जॉब है, देन आर्टिसंस का जॉब है. तो ऐसे अलग अलग जॉब्स होते हैं और वो जॉब हर एक लोग नहीं कर सकते. कॉबलर का जॉब हर एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता, वो सिर्फ कॉबलर्स को ही आता है. कारपेंटरी का जो जॉब है वो सिर्फ कारपेंटर्स को ही आता है. ओके, सो देयर आर सर्टेन एसेंशियल जो जॉब्स होते हैं, ओके, वो किससे हम कर सकते हैं? इट इज ड्यू टू दी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. हर एक लोग वो जॉब नहीं कर सकते हैं. ओके, और वो जॉब हम कैसे करके ले सकते हैं? बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रेस्टीज एंड प्रिविलेज. कुछ उन्हें प्रिविलेज देना चाहिए उस स्ट्रेटा को, सर्टेन प्रेस्टीज इज गिवन टू दैट स्ट्रेटा. तो ऐसे हम वो जॉब्स करके ले सकते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. अभी यहाँ पे एग्जांपल है यूनिवर्सिटी, इनफैक्ट आर्मी भी यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं आर्मी का भी. It is also example of stratification which with clearly defined strata. यहाँ पे क्या होता है, अभी यूनिवर्सिटी लेवल में भी कुछ clearly defined strata होते हैं. Then there are certain specific roles. कुछ जो भी लोग हैं उनका एक status होता है. ओके, हर एक का स्पेसिफिक रोल होते हैं. देन देर आर सर्टन रोल एक्सपेक्टेशंस, कुछ नॉर्म्स होते हैं, एंड देर आर प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर एंड इंटर रिलेशनशिप, एंड दिस ऑल आर क्लियरली ऑर्गेनाइज्ड टू डू अ जॉब. ओके, ये सब का क्या होता है? क्लियरली ये सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, तो वो टू डू अ सर्टन जॉब. So next point is the society gives rewards to serve as incentives to get various job accomplished. अभी ये जितने भी हमने जॉब्स का देखा है ना, बार्बर का जॉब हो या फिर कारपेंट्री का जॉब हो, ब्लैक स्मिथ का जॉब हो, तो हम हर एक जॉब के लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं. ओके, रिवॉर्ड मतलब हम उनको पेमेंट देते हैं उनका, या फिर कुछ इकोनॉमिक या फिर एस्थेटिक, मटेरियलिस्टिक या फिर साइकोलॉजिकल हम उन्हें रिवॉर्ड्स देते हैं, हम कुछ इंसेंटिव्स देते हैं, सो दैट पीपल ऑल्सो गेट बिट मोटिवेटेड टू डू दैट जॉब. और हमें इतना ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी रिवॉर्ड हम देते हैं ना लोगों को, या फिर जो भी हम इंसेंटिव्स देते हैं उन्हें, इट शुड बी इन लाइन विद द वर्क दैट दे आर डूइंग. ओके, जो भी उनका काम है उसके हिसाब से हमने उन्हें रिवॉर्ड्स या फिर उन्हें हमने इंसेंटिव्स देने चाहिए, so that they also get motivated to accomplish that essential job in the society. So I hope that this first function is clear to you. Let us move on to the next function, that is regulation and control of individual and group relationships and participation. अभी यहाँ पे दो चीजें हैं. First one is control and regulation of group relationships and next is the participation. मतलब क्या कि stratification में जो भी इंडिविजुअल्स है उनमें जो ग्रुप रिलेशनशिप्स है वो कैसे कंट्रोल की जाती है, एंड हाउ पार्टिसिपेशन अमंग्स द इंडिविजुअल इज आल्सो कंट्रोल्ड. सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट stratification regulates and controls human relationship in society by defining the roles and role expectation. So हर एक इंडिविजुअल का कुछ रोल होता है और उनके कुछ रोल एक्सपेक्टेशंस होते हैं. तो हम क्या करते हैं, उन्हें क्लियरली डिफाइन करते हैं. हर एक इंडिविजुअल को खुद का रोल मालूम होता है और खुद के जो रोल एक्सपेक्टेशंस है वो मालूम होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्कूल का एग्जांपल लीजिए,
सो एक चेयरमैन होता है, डायरेक्टर होते हैं, फिर टीचर्स है, प्रिंसिपल है, स्टूडेंट्स है। तो हर एक को खुद का जो रोल है वो मालूम होता है। स्टूडेंट को खुद का रोल पता है, टीचर्स दे नो देयर रोल, देन प्रिंसिपल को उनका रोल मालूम है। एवरीबडी हैव सर्टेन रोल एक्सपेक्टेशंस। सो ये जो रोल्स है वो हमें मालूम होते हैं। दैट इज व्हाई देयर इज certain control in the human relationships. They know that how they should behave with each other. So in this way, stratification controls the and also regulates the human relationship in society by defining the roles and roles expectation. Now next point is, whatever an individual's position, whether high or low, social stratification regulates his participation in certain areas of social life. अभी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में हमने देखा था कि कुछ हाई एंड लो स्ट्रेटा है। तो हर एक इंडिविजुअल को अपनी खुद की जो पोजीशन है वो मालूम होती है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओके सोशल स्ट्रैटिफिकेशन regulates his participation in certain areas of social life. Now, social stratification, it tends to regulate the participation of groups and individuals in the total life of society, giving them access to certain areas and restricting them to others. मतलब क्या, आप जो पार्टिसिपेशन है वो रेगुलेट करते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से। हम जो पार्टिसिपेशन है ऑफ द पीपल वो हम रेगुलेट करते हैं बाय गिविंग देम एक्सेस टू सर्टेन एरियाज। कुछ एरियाज में उन्हें हम एक्सेस देते हैं, लेकिन कुछ एरियाज में रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटा इन विच दीज पीपल आर प्रेजेंट। सो इन दिस वे the social stratification regulates and controls the group relationships and participation of individuals. Next point is contribution to social integration and structure. Social integration means unity. Okay, so stratification in society have strong integrative function. Integrative मतलब strong unity function. अभी क्या होता है, अलग अलग स्ट्रेटा है तो लोगों को खुद का रोल मालूम होता है। ओके, बेस्ड ऑन दैट यू नो दे हैव सर्टेन ग्रुप रिलेशनशिप्स विथ ईच अदर। सो इसके वजह से अभी जैसे उन्हें खुद का रोल्स जो है वो मालूम है, तो इसलिए देयर इज सर्टेन यूनिटी। जैसे टीचर को टीचर का रोल मालूम है, स्टूडेंट को स्टूडेंट का रोल मालूम है, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल का रोल मालूम होता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट दे हैव सर्टेन रिलेशनशिप विथ ईच अदर, एंड दैट इज व्हाई द सोसाइटी हैव स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेटिव फंक्शन। इसके वजह से ही सोसाइटी में कुछ यूनिटी होती है। एवरी स्ट्रेटा इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हर एक स्ट्रेटा में जो पीपल है तो वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। स्ट्रेटा 1 के जो लोग हैं वो स्ट्रेटा 2 और स्ट्रेटा 3 पे डिपेंड करते हैं। स्ट्रेटा 2 के जो है वो स्ट्रेटा 1 और स्ट्रेटा 3 पे डिपेंड करते हैं। जो स्ट्रेटा 3 के लोग हैं वो स्ट्रेटा 1 स्ट्रेटा 2 पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसे हर एक स्ट्रेटा के जो लोग हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। दैट इज व्हाई देयर इज इंटीग्रेटिव फंक्शन, मीन्स देयर इज यूनिटी इन द सोसाइटी। ओके, सर्विंग टू कोऑर्डिनेशन होता है एंड हार्मोनाइज दी, एक हार्मोनी होती है विद इन द सोशल स्ट्रक्चर, बिकॉज इन स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी मेंबर्स आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। नाउ द लास्ट फंक्शन इज सिंप्लीफिकेशन। Now stratification of society categorizes people into different strata. अभी हमने ये देखा है stratification में क्या होता है कि हम लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग स्ट्रेटा में हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं। सो एवरी जो स्ट्रेटा है उनका एक पर्टिकुलर रोल होता है। सो द रोल एक्सपेक्टेशन क्या करता है, इट सिंप्लीफाइज मैन्स वर्ल्ड इन रिस्पेक्ट टू हिज रिलेशन विद अदर पीपल। सपोज अभी फैमिली भी है, तो फैमिली का अगर हम एग्जांपल ले तो चिल्ड्रन नो दैट व्हाट आर देयर रोल्स एंड हाउ दे शुड बिहेव विद देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स को भी खुद के रोल मालूम होते हैं एंड दे आल्सो नो दैट व्हाट इज देयर रिलेशनशिप विद देयर चिल्ड्रन। और जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है उन्हें भी मालूम होता है कि जो बच्चे हैं घर पे या फिर जो बड़े हैं उनके साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है। तो जैसे कि जो रोल्स है ओके वो दे आर ऑलरेडी डिफाइंड एंड पीपल नो दैट व्हाट आर देयर रोल एक्सपेक्टेशंस। सो it helps to simplify their world with respect to the relationship with the other people. So चार हमने ये देखे हैं functions देखे हैं। First one was means of accomplishing essential jobs in the society. Second one is regulation and control of individual and group relationships and participation.
then contribution to social integration and structure, and the last point is simplification. So these are the four functions of social stratification. नेक्स्ट इज द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेशन. अभी जो सर्टिफिकेशन है ओके वो हमने कौन से बेसिस पे किया है ये हम देखेंगे. सो ऐसे पहले तो there are two different sources from which stratification is in society has developed. Okay, first यहाँ पे गलती से is हुआ है. This is in stratification in society has developed. So first one is ethnic stratification और social stratification. So ethnic stratification में क्या होता है ना कि दो ग्रुप्स होते हैं, दो ethnic या फिर racial ग्रुप्स होते हैं और इसमें जो एक ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप को डोमिनेट करता है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जैसे हमने देखा था दैट ब्लैक्स और व्हाइट्स में जब हम देखते हैं इन रेशियल ग्रुप्स तो जो व्हाइट पीपल है दे यूज्ड टू डोमिनेट द ब्लैक पीपल. वो क्या करते थे ब्लैक पीपल को डोमिनेट करते थे. सो क्या है ये अलग अलग दो इथनिक ग्रुप्स है. ओके दो रेशियल ग्रुप्स है इन विच वन इज डोमिनेटिंग द अदर ग्रुप. सो दिस इज नोन एज एथनिक स्ट्रैटिफिकेशन. नाउ नेक्स्ट इज ऑन सोशल बेसिस. अभी जो हमने देखा अभी तक वो सोशल बेसिस पे ही था. Okay, social basis for stratification in society involves growth of a system of ranked strata. हमने देखा था that we define and we rank the strata within the society. The social factors that give status to individuals of groups are criteria socially determined. जो भी ये social stratification होता है okay on social basis तो it is based on कुछ value system पे based होगा और कुछ social values of society पे बेस्ड होगा. यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ दो ग्रुप्स है एंड वन इज डोमिनेंट ओवर अदर. ऐसा नहीं होता है यहाँ पे. ओके देयर आर वेरियस स्ट्रेटा और बेस्ड ऑन वैल्यू सिस्टम ये स्ट्रैटिफिकेशन किया गया है. इन सम सोसाइटीज कुछ सोसाइटी ऐसी होती है जहाँ पे ऑक्यूपेशन के बेसिस पे स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं, नहीं तो इनकम या वेल्थ के बेसिस पे करते हैं, एजुकेशन के बेसिस पे स्ट्रैटिफिकेशन किया जाता है. ओके नहीं तो फिर ओनरशिप ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी, देन एंसेस्ट्री के बेसिस पे सर्टिफिकेशन किया जाता है. सो देर आर सर्टन अलग अलग टाइप्स होते हैं ओके जिसके बेसिस पे अलग अलग बेसिस होते हैं जिसपे सर्टिफिकेशन किया जाता है. ओके बट यू हैव टू रिमेंबर दैट द यूनिवर्सल क्राइटेरिया ओके और डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्टेटस. हम जो सर्टिफिकेशन करते हैं तो जो यूनिवर्सल क्राइटेरिया है इट इज वेल्थ, एंसेस्ट्री, functional utility of the individual, then religion and biological characteristics. इनके बेसिस पे ही stratification universally किया जाता है. Okay, so universal criteria कौन कौन से है? Wealth. Wealth मतलब economic status कैसा है? जो economic status है of the individuals वो कैसा है उसके बेसिस पे हम स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं. फिर एंसेस्ट्री मतलब फैमिली हिस्ट्री वी कैन से या फिर फैमिली बैकग्राउंड वो कैसा है ओके उनकी एंसेस्ट्री कैसी है, हेरिडिटी कैसी है, तो इसके बेसिस पे भी स्ट्रैटिफिकेशन कर सकते हैं. देन फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल मतलब ऑक्यूपेशन कौन सा करते हैं वो लोग या फिर उनका प्रोफेशन कौन सा है उसके बेसिस पे भी स्ट्रैटिफिकेशन हम कर सकते हैं. फिर रिलीजन कौन सा है, जैसे सपोज हिंदू है या फिर मुस्लिम्स है या फिर क्रिश्चियनिटी है ओके या फिर बुद्धिज्म है. तो ऐसे रिलीजन के बेसिस पे भी हम स्ट्रैटिफिकेशन कर सकते हैं. एंड स्ट्रैटिफिकेशन कैन ऑल्सो बी डन ऑन द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर भी हम स्ट्रैटिफिकेशन कर सकते हैं. इसमें मोस्टली दो टाइप्स है, वन इज द एज ग्रुप एंड अनदर वन इज द सेक्स. तो सेक्स में क्या आता है, मेल एंड फीमेल. और हम जब एज ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें होता है सबसे पहले तो चिल्ड्रन है, देन अडल्टहुड है ओके फिर जो बड़े हैं घर के वो. तो ऐसे एज ग्रुप के हिसाब से भी कैरेक्टर स्ट्रैटिफिकेशन होता है. एंड बेस्ड ऑन सेक्स ऑल्सो कैरेक्टर हम स्ट्रैटिफिकेशन कर सकते हैं. सो ये दो जो है ये बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है. ओके सो प्लीज रिमेंबर कि दैट यूनिवर्सल क्राइटेरिया के हिसाब से हम वेल्थ के बेसिस पे,
एंसेस्ट्री के बेसिस पे, देन फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल मतलब ऑक्यूपेशन या फिर प्रोफेशन के हिसाब से, देन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रैटिफिकेशन कर सकते हैं. So, okay students, so this is all for our today's lecture. The remaining portion, that is your forms or types of social stratification and the differences between caste and class, we will see in our next lecture. So thank you so much.